Dear students, our today's topic is spectrum. What is the mean of the spectrum? Actually, when you observe and when you see the sunlight, it looks white, but actually the sunlight is not white. It is a mixture of 7 colors, and that is called Vibgyor. When the white light sunlight is passed through the prism, you might have seen many times when the light passes through the prism, then all the 7 colors of the white light that is scattered in the 7 colors, and if we observe this 7, then we will observe an spectrum, and this spectrum very clearly you can see the 7 colors. And this type of spectrum which we get, suppose this is an example, here the white light is passed through the prism, and then the color which are scattered, that is observed in the spectrographic plate, then we get this colors. इसमें violet, indigo is not mentioned here, but indigo is also there, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This type of spectrum which when we see and when we observe, then we see that this type of spectrum is called continuous spectrum. Why it is so called continuous spectrum? Because here the one color merges into the another color. You cannot differentiate exactly the 2 colors. As if, for example, if I say to you that you draw a color between the red color and orange color, then it is very difficult to draw a line which can differentiate the red color and the orange color, or the orange color or yellow color. So why? Because why this problem occurs? Because the one color merging into the another color. So this type of spectrum, that is called continuous spectrum. So first we should learn the meaning of the spectrum, and then spectrum is divided into the 2 types. One is called continuous and one is called discontinuous. The continuous spectrum are those in which the one color merges into another color. Second type of spectrum is called discontinuous spectrum, and discontinuous spectrum में क्या होता है कि जो colors होते हैं, they can easily be differentiated, and we can draw the line and we can tell clearly that this is the violet color, this is the indigo, this is the blue, green, yellow, orange, red, like that. So our next topic is, that is the discontinuous spectrum. This is the type of spectrum where we can easily differentiate the colors and one color does not merge into another. This type of spectrum is shown by the element. If there are 2 types, emission spectrum and absorption spectrum. जो discontinuous spectrum होता है, that is also 2 types, emission spectrum and absorption spectrum. And what is the difference in these 2, emission and absorption? For that, it is better to understand with the help of this diagram. So in the first diagram you see, हम लोग क्या करते हैं, जैसे we take a glass tube this way and we adjust 2 electrode in this, and in this glass tube we take a gas, कोई गैस ले लेते हैं इसको, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, we take the hydrogen gas and we pass the electric current. When we pass the electric current, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है उसमें क्या होता है, जो electrons which are present in the atoms or molecule, they get excited. जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, when we pass the electric current, so the gas which is present in this glass tube, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they get excited, and after the excitation they leave its original space and they jump to the high energy state. जैसे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, that is basically present in the first shell, and when the electric arc is given, then that leaves its first shell and jumps into the higher energy level, and when it transferred or jumped into the high energy level, does not stay there, it comes back afterward, and when it comes back, then it releases the energy. तो जब इलेक्ट्रॉन्स कोई भी जंप करता है, then it absorbs energy, and that absorbs energy comes from the electric current. इलेक्ट्रिक करंट से उसको एनर्जी मिलती है, एंड देन एट वंस इट शिफ्ट्स टू द हाई एनर्जी स्टेट. लेकिन हाई एनर्जी स्टेट पे दैट डज नॉट स्टे देयर, इट कम्स बैक, एंड व्हेन इट कम्स बैक इट रिलीजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन देन दे गेट इग्नाइटेड, और उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं. तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द मेटल, दे गिव गो टू द हाई एनर्जी स्टेट ड्यू टू द स्पार्क ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, and afterwards they come back. When they come back, they release the energy in the form of radiation. तो यहाँ पर भी रेडिएशन निकलता है, एंड दिस रेडिएशन नाउ पास थ्रू ए प्लेट, उसके बीच में एक होल होता है हल्का सा, एंड देन फाइनली दिस रेडिएशन दैट इज पास थ्रू द प्रिज्म, and finally at the last we observe the spectrum on the spectrographic plate. The spectrum which we get here, that is called emission spectrum,
And how do we define this emission spectrum? We get the colored lines here in between the dark patches. तो बीच में dark patches होते हैं और सारी की सारी colored lines होती हैं. And this type of spectrum which we get, that is the fingerprint of the element. हर element का जो ये spectrum आएगा, that will be different. जैसे for example if I am taking the hydrogen, then we get the pattern of lining in the unique pattern of lines. और हमको यहाँ पर एक यूनिक पैटर्न मिलता है और यही इस हाइड्रोजन का फिंगरप्रिंट कहलाएगा. बिसाइड द हाइड्रोजन इफ एनी अदर एलिमेंट आई टेक, वी आल्सो गेट द एमिशन स्पेक्ट्रम, बट दैट विल नॉट बी सिमिलर टू द हाइड्रोजन. तो यहाँ पर जो लाइनिंग का पैटर्न है वो आपका हर एलिमेंट में अलग अलग आता है. एंड दैट इज वाई दीज स्पेक्ट्रम्स आर कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट. जैसे यू माइट हैव विजिटेड मेनी टाइम्स इन द मॉल. तो मॉल में क्या होता है कि हर आर्टिकल पर एक बारकोड होता है एंड दैट बारकोड हैज ए यूनिक लाइनिंग पैटर्न. तो जैसे उस पर मशीन से ट्रेस करते हैं तो मशीन उसको बारकोड को रीड करती है और लाइनिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इट कनेक्ट्स विद द आर्टिकल और अपने आप कंप्यूटर पे उस आर्टिकल का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है और जो भी उसका रेट है, उसकी एक्सपायरी है, ऑल थिंग्स दैट ऑटोमेटिकली कम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम उसका फिंगरप्रिंट कहलाता है. तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमको, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम. ये आपका एक यूनिक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का. इन द सेम वे अदर एलिमेंट्स इफ आई टेक, देन अदर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम वी गेट. सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इसमें क्या करते हैं, वी टेक द सोर्स ऑफ द व्हाइट लाइट एंड white light is first absorbed in the absorbing sample. This absorbing sample that may be the ionic compound like sodium chloride, and then it passes through the prism, and finally the spectrum we observe on the spectrographic plate. Then again we get a spectrum, but in this type of spectrum we are getting the colored patches in between the dark lines. See the basic difference between the two. In the emission spectrum we are getting the colored line in between the dark patches, and here we are getting the colored patches in between the dark lines. तो दोनों में आपके फर्क है, emission spectrum and absorption spectrum, और that difference is written here. The first difference, it is obtained when the radiations are emitted by the excited sample. The radiations are first passed through the prism and then analyzed directly on a spectroscope. In the absorption spectrum, it is obtained when the white light is passed through a solution and then passed through the prism. The transmitted light is analyzed in a spectroscope. Second point है, it consists of bright colored lines separated by dark patches. और यहाँ पर आपको मिलेगा it consists of dark lines in between the colored patches. So that is the basic difference between the emission spectrum and absorption spectrum. In our syllabus, we will study only the spectrum of hydrogen or hydrogen-like ions. Hydrogen, one single atom of hydrogen has only one electron, so it is called single electron system. Or hydrogen has only one electron. जैसे हीलियम होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट He plus that contains only 1 electron. तो हाइड्रोजन has 1 electron. He plus has 1 electron. Now if I take Li plus 2, so lithium plus 2, lithium atomic number is 3, the total electrons are 3. If 2 electrons are lost, that also contain 1 electron. So we are going to study here the spectrum of hydrogen or hydrogen like ions. बेसिकली बोहर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस. इट मींस द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. और जब हमने बोहर का जो ड्रॉबैक्स पढ़े थे तो उसमें एक पॉइंट था कि बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. इट मींस ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ दोज एटम विच कंटेन मोर देन वन एटम. इट मींस द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग. जब व्हेन वी स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, द सेम कॉन्सेप्ट वी विल टेक. यहाँ पर जो हम लोग ये जो ग्लास ट्यूब हम लोग ली थी, इन दिस वी टेक द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को लेने के बाद में वी गिव द इलेक्ट्रिक स्पार्क, वी गिव द इलेक्ट्रिक करंट, देन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द atoms of hydrogen, they get excited, they go to the high energy state, and afterward when they come back they release energy in the form of radiation, and this radiation is passed through the prism and finally it is observed in the
स्पेक्ट्रोग्राफिक प्लेट एंड देन वी गेट द स्पेक्ट्रम एंड दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। और अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जब हम हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पर एक यूनिक पैटर्न मिलेगा हमें लाइनिंग्स का, और इसी को हम लोग कहेंगे फिंगर प्रिंट्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो देखिए द सेम लैंग्वेज इज रिटन हियर, line spectrum of hydrogen. The spectrum of hydrogen atom can be obtained by passing an electric current through the gas taken in a glass tube under low pressure. The emitted light, जो आपका radiation है, the emitted light is analyzed with the help of spectroscope. The spectrum consists of a large number of lines appearing in the different regions of wavelength. जो लाइंस बनती हैं वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बनती है, जैसे हमारी विबग्योर होती है, डिफरेंट कलर्स आर देयर एंड डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट वेवलेंथ. सो इन द सेम वे व्हेन द रेडिएशंस दे कम आउट फ्रॉम द element like hydrogen, then also we get the radiations of the different wavelength, and as according to the different wavelength we get the different lining pattern in the spectrographic plate. The Swedish spectroscopic J. Rydberg, एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट जो स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट, noted all series of lines in the hydrogen spectrum which could be described by the following equation. जो रिडबर्ग थे उन्होंने इक्वेशन बनाई है एंड दैट इज कॉल्ड 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. इसमें जो लैम्डा है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, जो एमिटेड लाइट है, रेडिएशंस है. इफ वी नीड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन वी यूज दिस फार्मूला 1 अपॉन लैम्डा. एंड अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था जो वेव नंबर होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. सो आइदर इन द क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द लैम्डा और यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द न्यू बार दैट इज वेव नंबर. तो अगर आपसे if in the exam it is asked wave number, then you don't write this and simply you will write nu bar is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. And if the lambda is asked, then you cut this, then you will be, it will be equal to 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So one by one again we see this is the wavelength, this is the wave number and this is called Rydberg constant और इसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर एंड दैट इज फिक्स्ड. और ये आपका 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. n1 होता है दैट शेल, जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रॉन जंप एंड दे गो टू द हाई एनर्जी स्टेट, और हाई एनर्जी स्टेट पर स्टे नहीं करते हैं, दे कम बैक एंड व्हेन दे कम बैक तो जहां से जब नीचे गिरते हैं तो किसी भी शेल पे आ जाते हैं. दे मे कम in the fourth shell, they may come in the third shell, they may come in the second shell, they may come in the first shell. और जिस शेल पर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी रिलीज होती है. तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आपका n1 हो गया. n1 इज द नंबर ऑफ शेल एट विच द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक और n2 इज द नंबर ऑफ शेल फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन कम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉन जम्प्स बैक फ्रॉम द फोर्थ शेल टू द सेकेंड शेल. तो जो सेकेंड है वो आपका n1 होगा और जो फोर्थ है दैट विल बी द n2. देखिए R इज कॉल्ड द Rydberg कांस्टेंट एंड इस वैल्यू इज फिक्स 109677 और जो n1 है दैट इज कॉल्ड शेल नंबर एट विच द इलेक्ट्रॉन कम्स एंड n2 इज कॉल्ड शेल नंबर फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन कम्स. नाउ सी द लैंग्वेज. According to the Bohr theory, when the electron jumps from the lower energy state to the high energy state, they absorb energy from the electric current. And when electron comes back from the high energy state or high energy level to the low energy level, they lose energy in the form of radiations. The transmission from upper to lower level occurs with a jump and a certain amount of energy radiation is released. जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं when the radiation strike with the photographic plate. और ये जो रेडिएशन निकलते हैं जैसे थर्ड पर आए तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी अलग वेवलेंथ होगी. जब फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा उसकी अलग वेवलेंथ होगी. तो जैसे ग्लास ट्यूब में वी कैन टेक द हाइड्रोजन गैस दैट मे कंटेन द मिलियंस ऑफ एटम्स और व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट तो मिलियंस ऑफ एटम कंटेन्स मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे जंप टू द हाई एनर्जी स्टेट. और जब वहां से वापस आते हैं तो उनका जो कमिंग बैक पैटर्न होता है दैट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट एटम्स. बहुत सारे एटम्स ऐसे होंगे जिनमें 4 से डायरेक्ट फर्स्ट पे आएगा, बहुत सारे एटम ऐसे होंगे जिनमें 4 से थर्ड पर आएगा. तो इस तरीके से जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी एनर्जी, उसमें रेडिएशन होता है और उस रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो हमको लाइंस मिलती हैं स्पेक्ट्रम पर उसी के अकॉर्डिंग उसका स्पेक्ट्रम बनता है. तो यहां पे लिखा हुआ है कि द ट्रांसमिशन फ्रॉम द अपर
to the lower level occurs with a jump and a certain amount of energy radiation is released. When the radiation is strike with the photographic plate, it gives its impressions in the form of 5 series of lines. जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो जिस शेल पर आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी की वेवलेंथ होती है, और फिर उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम पर लाइनिंग पैटर्न आता है। और वो जो लाइनिंग पैटर्न है वो आपकी 5 टाइप का लाइनिंग पैटर्न होता है। 1 सीरीज ऑफ लाइन दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, सेकंड टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड बामर सीरीज, थर्ड टाइप ऑफ सीरीज कॉल्ड पास्शियन सीरीज, फोर्थ टाइप ऑफ सीरीज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज, एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ दैट इज कॉल्ड फंड सीरीज। तो इस तरीके का लाइनिंग पैटर्न आता है। मान लीजिए ये आपका स्पेक्ट्रम पर एक लाइनिंग पैटर्न आ गया, इसको हमने नाम दे दिया लाइमन पैटर्न। फिर आपका सेकंड पैटर्न आ गया, सेकंड पैटर्न ऑफ सीरीज हो सकता है ये आ जाए, इसको हम लोगों ने कह दिया बामर सीरीज। फिर इन द सेम वे थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न मान लीजिए इसी के आगे मिल गया हमको, ये आपका पास्शियन हो गया। और फाइनली इसके बाद में मान लीजिए नेक्स्ट पैटर्न है आपका ये, तो ये आपका ब्रैकेट हो गया। और उसके बाद लास्ट वन दैट इज फंड, ये आपका फिफ्थ टाइप की सीरीज हो गई। तो ये जो लाइनिंग पैटर्न है पूरा, ये आपका एक स्पेक्ट्रम हो गया। तो व्हेन वी टेक द हाइड्रोजन देन वी गेट दिस यूनिक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम एंड वी गेट द 5 सीरीज ऑफ लाइंस, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्शियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। अब बिसाइड द हाइड्रोजन इफ एनी अदर एलिमेंट आई टेक, तो उसमें भी लाइनिंग पैटर्न मिलेगा, बट दैट लाइनिंग पैटर्न विल बी डिफरेंट देन द लाइनिंग पैटर्न ऑफ द हाइड्रोजन। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट होते हैं दे जस्ट ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट एंड दे प्रिडिक्ट दैट दिस स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू विच एलिमेंट। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट होते हैं वो सिर्फ स्पेक्ट्रम देख के बता सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रम किस एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया स्पेक्ट्रम्स आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो लाइमन सीरीज कब बनती है? जब N1 1 होता है और N2 जो है वो 2 और 3 होता है। N1 का मतलब फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन कम, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है और फर्स्ट शेल पे आके गिरता है, और जब फर्स्ट शेल पे गिरेगा तो कहां से आएगा? एक शेल ऊपर, यानी कि 2 3 4 5 6 7 कुछ भी 2 3 4 5 6 से गिरेगा, फर्स्ट पर आएगा, और जो लाइनिंग पैटर्न बनेगा दैट इज लाइमन सीरीज। इन द सेम वे व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक एट द सेकंड शेल, और सेकंड शेल पे जब आएगा तो कहां से आएगा? थर्ड ऑनवर्ड्स, 3 4 5 6 वहां से आएगा तो सेकंड पर। फिर पास्शियन सीरीज, पास्शियन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कम्स बैक एट द थर्ड शेल, थर्ड शेल पर आएगा तो कहां से आएगा? 4 5 6। जो N2 है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन N1, जो वैल्यू ऑफ N2 है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ पर आएगा, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ पर आएगा तो उसके लिए N2 दैट विल बी 5 and 6, और व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक एट द फिफ्थ शेल तो उसके लिए N2 जो है वो 6 and 7 होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि लाइमन के लिए N1 इज 1 एंड N2 इज ग्रेटर देन 1, बामर के लिए N1 इज 2 एंड N2 इज ग्रेटर देन 2, पास्शियन के लिए N1 इज 3 N2 इज ग्रेटर देन 3, ब्रैकेट के लिए N1 इज 4 N2 इज ग्रेटर देन 4, और फंड के लिए N1 इज 5 और N2 इज ग्रेटर देन 5। अब इसका जो रेडिएशन निकलेगा उसकी अपनी वेवलेंथ होगी। तो लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ से मैच करती है, बामर की वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट से मैच करती है, पास्शियन, ब्रैकेट एंड फंड की जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड से मैच करती है। ये देखिए, दिस इज द वन डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकेंड शेल, this is the third shell, fourth shell, fifth shell, sixth shell. So what did I tell you? If suppose this is the hydrogen, then the first shell, then second shell, third shell, fourth shell, fifth shell. So when we give the electric current, then as I told you, all the electrons they jump to the high energy state, और उसके बाद में वो नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो if the electron falls at the first shell, those electron which falls at the first shell, तो यहाँ पर वो एक series of lines बनाएंगे, और ये जो series of line है that is called Lyman series। तो इन द सेम वे व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक एट द सेकंड शेल, ये आपका सेकंड शेल हो गया ये वाला, और सेकंड शेल पर जब आते हैं देन आल्सो दे मेक ए पैटर्न ऑफ लाइनिंग पैटर्न एंड दैट लाइनिंग पैटर्न इज कॉल्ड बामर सीरीज। व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स बैक एट द थर्ड शेल, दिस इज द थर्ड शेल, तो ये आपका पास्शियन सीरीज बनाएंगे, और पास्शियन के बाद फिर आपकी जो फोर्थ पर इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो वो ब्रैकेट बनाएंगे, एंड फाइनली फिफ्थ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो फंड सीरीज बनाते हैं। Our next topic is calculation of energy of a shell.
जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ईच शेल हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ द एनर्जी, और हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फाउंड इन द शेल दे आल्सो हैव द सेम एनर्जी अकॉर्डिंग टू द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। जैसे फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी फर्स्ट शेल की एनर्जी के बराबर होगी, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी सेकंड शेल के बराबर होगी। तो हमें किस शेल की कितनी एनर्जी है, हाउ विल गेट टू नो। तो उसके लिए बोहर ने आइडिया बताया कि इफ यू नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी शेल देन he suggested a formula En. En का मतलब energy of any shell, that is equal to -2 pi square m E4 upon n square into h square। तो इसमें जो 2 है that is the constant, pi की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, m is the mass of the electron and E is called charge of the electron, n is the number of shell। Suppose you are trying to calculate the energy of the first shell, then we write 1 square and h is called Planck's constant। तो इसमें these many things when you will calculate from here to here, then you will get this value -2.17 into 10 to the power -80, and upon this is n square, so n square will remain as it is। So suppose we need to calculate the energy of the first shell, then we write here 1 और 1 का square 1, तो energy of the first shell, the energy of the first shell that comes same, and that is E1 is equal to -2.17 into 10 to the power -18 joule per atom। तो if somebody asks you what is the energy of the first shell, then you will say -2.17 into 10 to the power -18 joule per atom। अब हमें किसी भी शेल की अगर एनर्जी निकालनी है तो हम एक फार्मूला बना सकते हैं, एंड दैट इज En is equal to E1 upon n स्क्वायर। इसका मतलब हो गया एनर्जी ऑफ एनी शेल दैट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू ये हो गई आपकी अपॉन n स्क्वायर, एंड n स्क्वायर सपोज हमको सेकंड शेल की निकालनी है तो वी राइट 2 स्क्वायर, थर्ड शेल की निकालनी है 3 स्क्वायर, फोर्थ शेल की निकालनी है 4 स्क्वायर, लाइक दैट। और ये जो एनर्जी कैलकुलेट होती है दैट इज इन द जूल पर एटम। Sometime the numericals will not be based in the unit of joule per atom, that will be based on the kilojoule per mole। So how the value of the joule per atom we will convert into the kilojoule per mole, that you see when we convert into the kilojoule per mole, तो ये आपकी वैल्यू हो गई -2.17 into 10 to the power -18 upon n स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। तो किलोजूल पर एटम का मतलब 1 एटम, और किलोजूल पर मोल का मतलब इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 power 23। सो दिस इज नंबर ऑफ एटम, और किलोजूल में कन्वर्ट करने के लिए वी डिवाइड बाई 10 to the power 3, और जब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा दिस फार्मूला, इट मीन्स -1312 अपॉन n स्क्वायर किलोजूल पर मोल, एंड यहाँ पर जब n स्क्वायर 1 लगाएंगे तो E1 एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल दैट विल बी इक्वल टू -1312 किलोजूल पर मोल, एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल -328 किलोजूल पर मोल, एंड एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल दैट इज -146 किलोजूल पर मोल। सो लाइक दैट एनर्जी ऑफ एनी शेल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन। One more important point, this all description and all the concept which we have studied that is based on the spectrum of hydrogen, and this calculation is only for the hydrogen, or if the hydrogen like ion we are taking, for example He plus and Li plus 2, is there any change in the formula? Yes, a little change। जैसे for example energy of any shell when we calculate for हीलियम He प्लस और Li प्लस 2 विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ एक चेंज करेंगे, इस फार्मूले को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z स्क्वायर से, एंड व्हाट इज द Z? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जैसे हमको He प्लस का निकालना है तो He प्लस का, ये आपका He प्लस हो गया, He प्लस का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 स्क्वायर, तो ये हो गया जूल पर एटम में, और किलो जूल पर मोल में -1312 अपॉन n स्क्वायर, ये तो है हाइड्रोजन के लिए, एंड मल्टीप्लाई बाई Z स्क्वायर। तो यहाँ पर हीलियम है तो 2 का स्क्वायर, और अगर लिथियम है तो 3 का स्क्वायर। इसके बाद वन मोर टॉपिक, एंड दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी? जैसे मान लीजिए दिस इज न्यूक्लियस, एंड दिस इज द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल,
5th शेल, 6th शेल, 7th शेल। अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, नो एनी एलिमेंट हैज़ द नंबर ऑफ शेल मोर देन 7। और हाइड्रोजन में ओनली 1 शेल इज देयर एंड दैट 1 शेल हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया इफ दिस इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द हायर एनर्जी स्टेट देन इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। और कहां से एनर्जी आती है? इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकाल के कंप्लीटली वी आर एस्केपिंग आउटसाइड, हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकना है। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई मीन्स द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू द इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। हमने बिल्कुल बाहर निकाल दिया तो हम ये कहेंगे हमने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से बिल्कुल इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल में पहुंचा दिया। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे फाइनल नंबर ऑफ द शेल और माइनस इनिशियल नंबर ऑफ द शेल, और फाइनल नंबर ऑफ शेल दैट विल बी इक्वल टू ई इंफिनिटी, और जो इनिशियल नंबर ऑफ शेल है दैट विल बी इक्वल टू E1। तो सी दिस फार्मूला, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस E1। तो डेल्टा ई इंफिनिटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल, तो उसकी एनर्जी हम लोग लेंगे 0, और माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल दैट इज माइनस 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये जो डेल्टा ई है दैट विल कम प्लस 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। और ये जो एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसी डिफरेंस एनर्जी को हम लोग नाम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक बार इसकी डिफिनेशन फिर से सुन लिए, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और हाइड्रोजन के केस में दिस एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव 2.17 इंटू 10 to the power minus 18 जूल पर एटम। थैंक यू।